My dear students of class 10th, our today's topic is long walk to freedom. This is the discussion third of this lesson. So this is written by Nelson Mandela, as you already know. Nelson Mandela was African National Conference leader who struggled against apartheid system which was operating in South Africa for decades together. He and his comrades, raised their voice against the brutality of white people who ruled over South Africa for decades together. At last, Nelson Mandela was able to get rid of that brutality, and he was the first black president of South Africa to be elected in a fair and free election. He held office from 1994 to 1999. So today we are going to discuss what happened after when he was given oath as the president of South Africa. He declared his views regarding the democracy of South Africa and the development of the country. He pledged to uplift the constitution and remove poverty from the people of South Africa and provide them justice. So, the day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of white singing Nkosi Sikelel' Afrika and black singing Daystem. So when South Africa got freedom from the domination of the whites, they were happy. They sang their national anthem. The whites sang Nkosi Sikelel' Afrika and the blacks Daystem. The old anthem. It was the old anthem of the Republic. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem. तो उस दिन कोई भी ग्रुप व्हाइट्स या ब्लैक्स में से इसका गाने का बोल लाइक मीन्स वर्ड्स ऑफ सॉन्ग गाने के बोल गिनाई. तो किसी ग्रुप को यह मालूम नहीं था कि नेशनल एंथम कैसे गाया जाता है. पहले once they despise means to hate, क्योंकि उनको इसके साथ नफरत थी. they would soon know the words by heart. अब जब उनको आज़ादी मिल गई, अब उन्होंने वो जो वर्ड्स थे नेशनल एंथम के, उन्होंने अब इनको दिल में जगा दी. अब उनको इसके साथ लगाव हो गया, मोहब्बत हो गई. On the day of the inauguration, so when the new government was to set up, I was overwhelmed with a sense of history. तो मैं बहुत खुश था इस तारीख से, इस वाक़े से. In the first decade of the 20th century, तो 20वीं सदी की पहली दहाई में
A few years after the bitter Anglo-Boer War, तो इंग्लो-बोयर वॉर जो था उसके चंद साल बाद, तो देयर वर टू एंग्लो-बोयर वॉर्स टू बी फॉट. One was fought in from 1880 to 1881, and the second Anglo-Boer War 1899 to 1902, when the Orange Free State and Transvaal declared war on British. So it was the second war which was fought in the first decade of the 20th century, before my own birth. इसके नेल्सन मंडेला की पैदाइश से पहले the domination, the white skinned people of South Africa patched up their differences. तो साउथ अफ्रीका के जो व्हाइट स्किन, जो सफेद चमड़े वाले लोग थे, उन्होंने ब्लैक्स के खिलाफ उनको नफरत थी, वो उनको उनसे नफरत थी, एंड उन्होंने erected a system of racial domination against the dark skinned people of their own land. तो व्हाइट्स ने इन ब्लैक्स के खिलाफ एक सिस्टम, एक निजाम खड़ा किया था, और अपनी ही जमीन पर, यानी उनको बुरी नजर से वो देखते थे, वो उनको बहुत लो समझते थे, निकम्मा समझते थे. The structure they created formed the basis of one of the hardest, most inhuman societies the world has ever known. तो ऐसा निजाम उन्होंने कायम किया हुआ था साउथ अफ्रीका में, बहुत सख्त निजाम, इनह्यूमैन, जो गैर इंसानी था, जिनमें इंसानियत नहीं थी, जो इंसानियत के खिलाफ था, ऐसा निजाम उन्होंने कायम किया था साउथ अफ्रीका में. तो दुनिया के जो समाज थे, उन्होंने ऐसे निजाम कभी देखा नहीं था. तो ऐसा निजाम था साउथ अफ्रीका में, इन व्हाइट्स ने कायम किया हुआ था. नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, आप 20वीं सदी की आखिरी दहाई में, फ्रॉम 1990 onwards, and my own 8th decade as man, तो नेल्सन मंडेला की ये 8वीं डिकेड थी, 80 में था. That system had been overturned. तो ये जो निजाम था व्हाइट्स का ब्लैक्स के खिलाफ, जो ये निजाम था, तो ये तब्दील हो गया, ये खत्म हो गया, उसमें तब्दीली आ गई. It was changed forever, हमेशा के लिए, and replaced by one that recognizes the rights and freedom of all peoples, regardless of the color of the skin. तो ऐसा निजाम वहां कायम हुआ जिसमें लोगों की पहचान हो गई, जिनमें लोगों के हुकूक जो थे उनको उजागर किया गया, उनकी पहचान हो गई, रिकॉर्डलेस ऑफ द, यानी किसी रंग के बगैर कोई रंग का इम्तियाज नहीं था, कोई फर्क नहीं थी. अब सब एक जैसे हो गए. अब वहां एक ऐसा निजाम हो गया जिसमें कोई इम्तियाज बरता नहीं जा रहा था. The day had come about through the unimaginable sacrifice of thousands of my people. तो मंडेला कहता है कि वो दिन आ गया, आज़ादी का दिन, जब हमको आज़ादी मिल गई, लेकिन इसके लिए मेरे बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगियां कुर्बान की, अपनी जानें दे दी, तो जिनका हम तस्वुर नहीं कर सकते. अनइमेजिनेबल, इसका अपोज, ये इमेजिनेबल का अपोजिट है अनइमेजिनेबल, दैट विच कैन नॉट बी इमेजिन्ड. अनइमेजिनेबल मीन्स दैट विच कैन नॉट बी इमेजिन्ड. इट इज एडजेक्टिव. People whose suffering and courage can never be counted or repaid. तो वो लोग जिन्होंने कुर्बानी दी, उनकी जो कुर्बानी थी, जिसको उसको हम गिन नहीं सकते,
काउंट नहीं कर सकते और इसका हम मुआवजा अदा नहीं कर सकते। इतनी उन्होंने अपनी कुर्बानियां पेश की इस मुल्क की आज़ादी के लिए। I felt that day as I have on so many other days that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me। तो मैंने ऐसा महसूस किया उस दिन जब मुझे आज़ादी मिल गई, तो मैं एक बतौर एक मजमुआ था उन लोगों का जिन्होंने मुझसे पहले अपनी कुर्बानियाँ पेश की थी। तो मेरी हयाती में ये अफ्रीका जो था इसमें डेमोक्रेसी का आगाज हो गया और आई वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द ब्लैक्स। सो दैट डे हैड कम, जिसका मुझे इंतजार था। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइफ एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी। तो अब मुझसे वो अब नई जिंदगी का एक खुशहाल जिंदगी का अब आगाज हो गया। आई वॉज पेन दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम। तो मुझे दुख था, मुझे बहुत तकलीफ थी क्योंकि मैंने उनका शुक्रिया अदा नहीं किया। एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सैक्रिफाइस हैड wrought। तो वो भी इस काबिल नहीं थे कि उनकी कुर्बानियों ने कैसा रंग लाया, तो कैसा निज़ाम कायम हुआ। तो उनकी आंखों ने ये निज़ाम नहीं देखा क्योंकि वो इससे पहले इस दुनिया से मतलब गुजर चुके थे, रुखसत किया था। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड created a deep and lasting wound in my country and my people। तो नेल्सन मंडेला कहता है कि ये जो पॉलिसी थी, ये जो निज़ाम था अपार्थाइड का, इस तशद्दुद का, इस जुल्म का, इसने मेरे मुल्क में और मेरे लोगों में एक गहरा जख्म दिया था। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी years if not generations। तो अब हम मतलब वो अच्छे साल गुजारेंगे अगर नस्लें नहीं। रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। तो इस जो ये गहरा जख्म था, इससे हमने रिकवरी हासिल की, इससे हम बाहर आ गए। तो हम अब वो खुशहाल जिंदगी गुजारेंगे। बट द डिकेड्स ऑफ profound oppression and brutality had another unintended deep and strong effect। लेकिन ये जो काफ़ी देर ये निज़ाम चला, ये तशद्दुद का, जुल्म का, इससे एक मतलब गैर इरादी जो जख्म लगा था, जो तकलीफ पहुंची थी, एंड दैट वाज व्हाट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर। तो इस जख्म से, इस तकलीफ से इस मुल्क में बहुत अच्छे लोग पैदा हो गए जिन्होंने आज़ादी के लिए जुद्दजाहद की। उन्होंने तो इस जख्म से वो बर्दाश्त न कर सके, तो उन्होंने जुद्दजाहद स्ट्रगल की, अब आज़ादी की। तो उनमें कौन था? ओलिवर थम्बोस, द वॉल्टर सिस्लूस, द चीफ लथोलिस, द यूसुफ दाडोस, द ब्राम फिशर्स, द रॉबर्ट सुबकवोज ऑफ आवर टाइम। तो ये जो लोग थे, ये बहुत अहम लोग, इंपॉर्टेंट पीपल थे जिन्होंने आज़ादी के लिए जुद्दजाहद की। मैन ऑफ सच एक्स्ट्रॉर्डिनरी करेज। तो उनकी बहुत गैर मामूली जो थी हिम्मत थी उनकी, उनमें हौसला था। विजडम एंड जेनरोसिटी, उनमें दानाई थी और वो सखी लोग थे। That their like may never be known again। तो उनके जैसे हम लोग कभी उनकी जो कभी मतलब मिसाल नहीं मिलेगी दुनिया में। Men of perhaps it requires such depths of oppression to create such heights of character। तो जब जुल्म बढ़ता है, जब जुल्म की इंतहा होती है, तो इस जुल्म से दुनिया में ऐसे लोग पैदा होते हैं जिनका मतलब सोच बहुत बड़ा होता है। वो जुल्म से ही, जब जुल्म की इंतहा होती है, तो लोग पैदा होते हैं, बहुत अच्छे लोग पैदा होते हैं। तो बहुत लीडर्स पैदा होते हैं जो इस जुल्म के खिलाफ लड़ते हैं और अपने मुल्क को, अपने लोगों को इस जुल्म से छुटकारा दिलाते हैं। ऐसे लोग अफ्रीका में पैदा हो गए जिन्होंने आज़ादी के लिए जुद्दजाहद की और अपनी जानें कुर्बान की। My country is rich in the minerals and
जिम। तो नजम मतलब कह रहा है कि मेरा मुल्क जो है ये मैदनियात से भरा हुआ है और जवाहरात से, ये बहुत अमीर मुल्क है, ये बहुत दौलतमंद मुल्क है, इसमें बहुत जराए हैं, इसकी मतलब जो जो जमीन के नीचे हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट इज ग्रेटेस्ट वेल्थ इज पीपल, लेकिन मैंने इसको दौलत नहीं जाना, मतलब जवाहरात को, इस मादनियात को मैंने सिर्फ अपने लोगों को दौलत कहा। तो मेरे जो लोग हैं वो मेरी दौलत है, वो उनको मैं अहमियत देता हूँ, इससे जवाहरात से, बाकी चीज़ों से फाइनर एंड ट्रिवर देन द प्योरेस्ट डायमंड। तो ये जो मेरे लोग हैं जिन्होंने आज़ादी के लिए जुजात की, जिनके लिए मैंने लड़ा, तो ये इस सोने से भी कीमती है और मतलब डायमंड से भी कीमती है। इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। तो इन्हीं साथियों से मैंने इस करेज का, हिम्मत का, हौसले का माने जाना कि हौसला क्या होता है, हिम्मत क्या होती है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। तो मैंने अपने दौर में देखा ऐसे लोगों को जो अपनी जिंदगी को रिस्क में डालते हैं, खतरे में डालते हैं, और अपना जो उनका बड़ा मतलब ख्याल होता है, जो उनकी तमन्ना होती है, उसको पूरा करते हैं, उसके लिए जुद्दत करते हैं, अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर। आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू अटैक्स। तो मैंने लोगों को देखा जो मुकाबले के लिए खड़े होते हैं, एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग। तो टॉर्चर उनको होती है, तकलीफ उनको पूछती है, लेकिन ब्रेक नहीं करते हैं, रुकते नहीं हैं, इस मिशन को छोड़ते नहीं हैं। शोइंग अ स्ट्रगल एंड रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। तो वो अपना हौसला दिखाते हैं, सब्र दिखाते हैं, तब तक जब तक वो अपने मिशन में कामयाब होते हैं। आई लर्न दैट करेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। तो मैंने ये भी जान लिया कि तो हिम्मत जो होती है उसमें डर भी होता है, लेकिन डर पर काबू पाना होता है। बट द ट्रिप ओवर इट, लेकिन जब इंसान हौसले को नहीं छोड़ता है, तो इसको मुकाबले में डर भी होता है कि मुझे तकलीफ पूछेगी, क्या मैं कामयाबी हासिल करूंगा या नहीं। लेकिन जब उसमें हिम्मत होती है, वो इस डर पर काबू पाता है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही who does not feel afraid। तो बहादुर आदमी वो नहीं होता है जो डरता नहीं है, but he who conquers that fear। लेकिन बहादुर हम उसको कहते हैं जो इस डर पर काबू पाता है और कामयाबी हासिल करता है। इसके लिए इसके साथ मैं आपसे और उसका चाहता हूँ इंशाल्लाह